અમદાવાદના ચંડોળા વિસ્તારની અંદર અમદાવાદ પોલીસ, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને આજે એક મેગા ડિમોલિશન કર્યું. આ ડિમોલિશન ગુજરાતનું સૌથી મોટું ડિમોલિશન છે, જેને મુંબઈની ધારાવી પણ કહી શકાય. અહીંયા ગેરકાયદેસર લોકોની વસાહત ઊભી કરી દેવામાં આવી. વર્ષોથી અમદાવાદનું ચંડોળા તળાવ, જે અમદાવાદના કાંકરિયા તળાવ કરતાં 3 ગણું મોટું છે, આ તળાવ ઉપર એક પછી એક ઝૂંપડા બનતા ગયા, વધતા ગયા, અને આજે સ્થિતિ એવી નિર્માણ થઈ છે કે 10,000 કરતાં વધુ લોકો આ ગેરકાયદેસર વસાહતમાં રહે છે, જેને માધ્યમો બાંગ્લાદેશીઓની વસાહત કહે છે. તે સાચું નથી. હા, એ વાત સાચી છે કે અહીંયા બાંગ્લાદેશીઓ રહે છે. અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને અમદાવાદ પોલીસે પહેલગામની ઘટના પછી એક સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી હોવાનો દાવો કર્યો અને 1200 લોકોને ચંડોળા તળાવથી લઈ આવ્યા, તેમનું સરઘસ કાઢ્યું અને દાવો કર્યો આ બધા બાંગ્લાદેશી છે. પણ 1200માંથી માત્ર 200 લોકો બાંગ્લાદેશી નીકળ્યા. અમે બાંગ્લાદેશીઓના સમર્થનમાં નથી, પણ જે 1000 લોકો, બાકીના લોકોનું તમે સરઘસ કાઢ્યું, એ માત્ર ગરીબ હોવાના કારણે તેમની પાસે પુરાવા માગવામાં આવ્યા કે તેઓ ભારતીય છે. આ બહુ કમનસીબ ઘટના છે. ખેર, સરકારને કે પોલીસને આ વાતની શરમ અને સંકોચ પણ નથી. આ જે ગેરકાયદેસર વસાહત છે તેનું સમર્થન પણ આપણે ન કરી શકીએ. આ વસાહતને તોડી પાડવા માટે અમદાવાદ પોલીસ, અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને સંયુક્ત રીતે એક અભિયાન હાથ ધર્યું, જેમાં ટોરેન્ટ પાવરને પણ સામેલ કરવામાં આવ્યું. 75 જેસીબી, 200 ટ્રક, 2000 પોલીસ અને 1800 જેટલા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓને આ મેગા ઓપરેશનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા. જાણે અમદાવાદમાં યુદ્ધની તૈયારી થઈ હોય તેવો માહોલ સર્જાયો. આ ચંડોળા તળાવમાં એક લલ્લુ બિહારી નામનો માણસ પણ હતો, જે અહીંયા ગેરકાયદેસર વસાહત ઊભી કરતો હતો, લોકો પાસેથી રહેવાના પૈસા પડાવતો હતો. તેણે એક આલિશાન 2000 વારના એમાં ફાર્મ હાઉસ પણ બનાવ્યું હતું. આ લલ્લુ બિહારીનું ફાર્મ હાઉસ પણ અમદાવાદ કોર્પોરેશને ધ્વસ્ત કરી નાખ્યું છે. આજ સવારથી આ મેગા ઓપરેશન ચાલુ છે. કોર્પોરેશનના 75 કરતાં વધુ જેસીબી એક પછી એક મકાનો તોડી રહ્યા છે. લોકોના આશિયાના પણ તૂટી રહ્યા છે. આ મેગા ઓપરેશન હોવાને કારણે ગુજરાતના ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી બપોરે 1 વાગે અમદાવાદ સર્કિટ હાઉસ પહોંચે છે, જ્યાં અમદાવાદના સિનિયર પોલીસ અધિકારીઓ સાથે મિટિંગ કરે છે અને ત્યાર પછી તેઓ પહોંચે છે અમદાવાદ પોલીસ કમિશનરની કચેરીની અંદર, જ્યાં ફરી વખત એક બેઠકનો દોર શરૂ થાય છે. આ બેઠકમાં અમદાવાદ પોલીસ સહિત અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ, ગુજરાત એટીએસ અને અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના અધિકારીઓને પણ સામેલ કરવામાં આવ્યા. આ ગુજરાતનું સૌથી મોટું ડિમોલિશન હોવાના કારણે અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર ઓફિસ ધમધમવા લાગી. ગુજરાત પોલીસના ડોગ સ્ક્વોડને પણ કમિશનર ઓફિસ બોલાવવામાં આવ્યો, કારણ કે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ કમિશનર ઓફિસ આવી રહ્યા હતા. કચ્છના પ્રવાસેથી સીધા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર ઓફિસ પહોંચ્યા, જ્યાં ગુજરાતના ડીજીપી, અમદાવાદના પોલીસ કમિશનર, ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી સહિતના સિનિયર અધિકારીઓ પણ ત્યાં હાજર હતા. ગુજરાતના ગૃહ સચિવ મનોજ દાસ પણ ત્યાં હાજર હતા અને ત્યાં બેઠકનો દોર શરૂ થયો છે. આ બેઠકની અંદર મુખ્યમંત્રી જાણકારી લેવા આવ્યા છે કે ગુજરાતનું સૌથી મોટું ડિમોલિશન કયા પ્રકારનું ચાલી રહ્યું છે. આ મામલે અમે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી સાથે વાત કરી, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે બાંગ્લાદેશીઓને સાથે કોઈ પણ માફી બક્ષવામાં નહીં આવે. છતાં કેટલાક ટેકનિકલ પ્રશ્નો છે. પ્રશ્નો એવા છે કે 2 કે 3 પેઢીઓથી બાંગ્લાદેશીઓ અહીંયા આવી ગયા છે. એવા કિસ્સામાં હાલમાં જે રહે છે તેમની સાથે કાયદાની કડકાઈનો અમલ નહીં કરવામાં આવે, પણ જે લોકો ગેરકાયદેસર આવ્યા છે, ખોટા દસ્તાવેજો બનાવ્યા છે, તેમની સામે તો કાર્યવાહી થશે જ, પણ તેની સાથે જેમણે આ ખોટા દસ્તાવેજ બનાવી આપવામાં મદદ કરી છે અથવા કામ કર્યું છે, એ તમામની સામે અમદાવાદ પોલીસ કડક કાર્યવાહી કરશે. હર્ષ સંઘવીએ નવજીવન સાથે વાત કરતા એવું પણ કહ્યું કે અમે અનેક ટેલિફોન નંબર સર્વેલન્સમાં મૂક્યા હતા, જેના દ્વારા અમને જાણકારી મળી કે મોટી સંખ્યામાં બાંગ્લાદેશીઓ અમદાવાદ સહિત મોટા શહેરમાં આશ્રય લઈ રહ્યા છે.
તેની તપાસ પણ ગુજરાત પોલીસ ચલાવી રહી છે। આ મામલો ગુજરાત હાઈકોર્ટ સુધી પહોંચ્યો હતો અને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં આ ડિમોલિશન અટકાવવા માટે ત્યાં વસતા વસાહતીઓએ એડવોકેટ આનંદ યાજ્ઞિક દ્વારા એક પિટિશન દાખલ કરી હતી, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ ડિમોલિશનની કામગીરી તાત્કાલિક અટકાવી દેવામાં આવે, અમને સ્ટે આપવામાં આવે। જેની સામે ગુજરાત સરકારના વકીલે એવી રજૂઆત કરી હતી કે આ જે નાગરિકો જ્યાં રહે છે એ એક વોટર બોડી છે, એટલે કે કુદરતી તળાવ છે, તેને ગેરકાયદેસર રીતે બુરી તેની ઉપર વસાહત ઊભી કરી દેવામાં આવી છે। આ જે મકાનો છે એ ગેરકાયદેસર છે કે કાયદેસરના મકાનો નથી, એટલે આ મકાનોને તોડી નાખવાની શરૂઆત સરકારે કરી છે। અરજદાર તરફથી એવી પણ રજૂઆત હતી કે અમે બાંગ્લાદેશીઓના કારણે દંડાઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે ગુજરાત હાઈકોર્ટે સ્ટે આપવાનો ઇનકાર કરતા એવું કહ્યું હતું કે અત્યારે ગુજરાત હાઈકોર્ટ સામે કોણ ભારતનો નાગરિક છે તે પ્રશ્ન નથી, પ્રશ્ન એવો છે કે આ જે ગેરકાયદેસર વસાહત છે તેને હટાવવી જોઈએ કે નહીં। તો ગુજરાત હાઈકોર્ટ અત્યારે સ્ટે આપવાનો ઇનકાર કરે છે અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પોતાનું જે કામ કરી રહી છે તેને અમે અટકાવતા નથી। આમ એક મેગા ઓપરેશન અત્યારે અમદાવાદમાં ચાલી રહ્યું છે। આ ઓપરેશન દિવસો સુધી ચાલે એટલું મોટું ઓપરેશન છે। જે મુંબઈની અંદર ગેરકાયદેસર રીતે ધારાવી ઊભી થઈ તેવી જ નગરી, તેવું જ નગર આ ગેરકાયદેસર તળાવ ઉપર ઊભું થઈ ગયું છે। હવે તેને હટાવવાનું કામ ગુજરાત સરકાર કરી રહી છે। આ મામલે જ્યારે હર્ષ સંઘવીને પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે કહ્યું કે આ વહીવટી પ્રક્રિયા છે, એટલે આખી બાબતને અમે રાજકીય સ્વરૂપ આપવા માંગતા નથી। બીજી તરફ કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય ગ્યાસુદ્દીન શેખનું કહેવું એવું છે કે આ જે બાંગ્લાદેશીઓ છે તેની સાથે અમારી કોઈ સહાનુભૂતિ નથી, પરંતુ જે લોકો ભારતીયો છે જેમની અહીંયા વસાહત હતી, જેમના અહીંયા ઘર હતા, તેમને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપવામાં આવે એટલી જ અમારી માગણી છે। અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટમાં અનેક લોકો આ જ પ્રકારે રહેતા હતા, જેમને સરકારે જેમ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપી તેવી જ વ્યવસ્થા ચંડોળાના નાગરિકોને જેવો ભારતીયો છે તેને આપવામાં આવે એવી અમારી માગણી છે। આવું કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય ગ્યાસુદ્દીન શેખનું કહેવું છે। આ મામલે રાજકારણ ચાલશે, કારણ કે આ વસાહતમાં બહુમતી લોકો મુસલમાન છે, એટલે સરકાર ઉપર આરોપ એવો પણ લાગી રહ્યો છે કે સરકાર મુસલમાનોને નિશાન બનાવી રહી છે। જ્યારે હર્ષ સંઘવીનું કહેવું એવું છે અમે હિન્દુ મુસલમાનનો ભેદ જોયા વગર માત્ર ગેરકાયદેસર વસાહત છે તેને હટાવવાની પ્રક્રિયા કરી રહ્યા છીએ। સવાલ એવો છે કે છેલ્લા 30 વર્ષથી ગુજરાતની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન છે, તો 30 વર્ષમાં જ આ વસાહત ઊભી થઈ, ત્યારે આ ભાજપની સરકાર અને તેના નેતાઓ અને તેના અધિકારીઓ ક્યાં હતા? આમ ઘણા પ્રશ્નોના ઉત્તર હજી અનુત્તર છે।
सुल्ताना बीबी अफजल खान पठान। सुल्ताना जी, आप कितने साल से चंडोला में रहते थे और आज कार्यवाही हुई है, आपका घर डिमोलाइज हुआ है? क्या मेरे को यहाँ 40 साल हो गए। 40 साल। सोचा था कभी ऐसा हो? नहीं। किस तरह से हुआ, कैसे हुआ? पहले हमारे बच्चों को उठाए, हमारे जवाई को उठाए, मेरा हस्बैंड है नहीं, मैं बेवा औरत हूँ। डायरेक्ट दरवाजा खोलते के साथ हमारे घर के अंदर एकदम हमला कर दिया उन्होंने। आते ही एकदम हाईजैक कर लिए, सबको पकड़ के डायरेक्ट सबको डब्बे में भरा, झापटे में, और ले जाके फुटबॉल ग्राउंड छोड़ा। वहाँ 4-5 घंटे हमको बिठा दिए। सुबह 4 बजे से ले जाके सबों में 10 बजे छोड़ा हमको। उसके बाद हमारे लड़के लोगों को छोड़ा नहीं उन्होंने। दूसरे दिन छोड़े सबको, दूसरे दिन छोड़ा, चला के ठेठ फुटबॉल ग्राउंड से हवेली लेके गए। ये बेइंसाफी जुल्म है हमारे पे, बराबर। उसके बाद ये सब जगह तक करी, बोले तुम्हारे नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे। उसके बाद हमारे घर भी तोड़ दिया। आज हम बेसहारा रोड पे पड़े हैं। हमारा इतना नुकसान हो, हम गरीब इंसान बसा सकते हैं? कभी नहीं बसा सकते। आप पुलिस थाने में गए, आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई कागज मांगा गया? वेरिफिकेशन के लिए कोई चीज नहीं, ऐसा कुछ मांगा गया था? हाँ मांगा था, हाँ मांगा था। आप क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे थे? आधार कार्ड। आधार कार्ड फिर छोड़ दिया था? उन्होंने क्या बोला फिर? आधार कार्ड मांग के उन्होंने बोले इनके बाप दादा की वो मंगा पुरावे, वो भी मंगा के हमने दिए डॉक्यूमेंट सब, और हमारे जो बच्चों के डॉक्यूमेंट थे वो भी हमने रखे। आपके पास बिजली की सप्लाई आती है? हाँ आती है। बिजली की सप्लाई के बिल आप लोगों को दिए थे वहाँ पे? कहाँ पे?
पुलिस का देना। हाँ दिया है। और ये लाला बिहारी करके कुछ एक नाम आ रहा है, वो कौन है यहाँ पे? यहाँ के स्थानीय लोग कुछ किया जा रहा है कि यहाँ पे उनको पनाह लोगों को देते थे। सब ये झूठ लाला भैया। बिहारी कौन है? लल्ला बिहारी नहीं, लल्ला जो है वो किसी का है। लाला बिहारी करके नहीं, बिहारी नहीं है वो, लल्ला अच्छा, भाई है। अब क्या करोगे, क्या कहाँ जाओगे? क्योंकि कितने परिवार यहाँ पे आज मदद मांगते हैं। तो ये हमारे को चाहिए इंसाफ, हम जाएंगे काम। घर के बदले घर दो हमको घर के बदले घर चाहिए। हमारे बच्चे ना कपड़े पे ना हमारे पास कपड़ा भी सामान सब हमारा सामान क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है हमारे पास। आपके पास जो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का जो टैक्स का बिल आता था वो आपने लिखा है उनको? यहाँ टैक्स नहीं आता है। लाइट बिल आते और जो हमारे आधार कार्ड के पुरावे, राशन कार्ड का पुरावा है, ये सब जानकारी मिली कि आपको सुबह खाली कर देना है, आपका घर तोड़ने आ रहा है, तो पहले आपकी परिस्थिति, मनोस्थिति कैसी थी? जब मत पूछो, ऐसी बहुत खराब थी, बता तो रहे, बहुत खराब परिस्थिति। गले में हम 3-4 दिन में खाना नहीं खा, हमारे घर में खाना ही नहीं है। 14 दिन हो गया, हमारे पेट में अनाज नहीं है, हमने खाना नहीं से भटक रहे हैं, बेअनाज से हम भटक रहे। लोगों के घर घर खड़े रह के पानी पी रहे, किसी के घर से मांग के चाय पी ले रहे, इस तरह से हम जी रहे। हमारे घर में अनाज नहीं है, कोई अनाज की हमको सुविधा नहीं है, अभी भी कोई हमारे रहने की सुविधा नहीं है। हाँ, तो राजनेता आपसे मिलने आए? जिसको कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, ना सेजाद खान आया, ना कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई नेता नहीं आया। हमारे बच्चों के पूरा तो ऐसा कहना है कि जो बांग्लादेशी है उनके घर तोड़े गए, हमारे रहती है। और हमारे बच्चों को पकड़ने के बाद में ये सवाल करा गया हमारे साथ मेरा कि भाई हो हम तुमको पूछने थोड़ी खड़े रहेंगे कि तुम बंगाली है कि तुम गुजराती है, ये बोला हमारे साथ सवाल। मैं यहीं की हूँ, ये स्कूल में पढ़े, ये मेरी सर्टी है, मैं यहीं की हूँ, रिजल्ट है हमारे स्कूलों के, रिजल्ट है सब है, मैं यहीं की पैदा से, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं। यही हम लोग यहीं पढ़े के हुए हैं। हैं। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम खैरुनिसा मोहम्मद कौसर से। कहाँ रहते हो? अब मैं यहीं पे रहती, झुपड़ा बांध के रहती थी। मेरे को जैसे जैसे मेरे पास आता गया पैसा, मैं वैसे वैसे बनाती गई। अब मेरे 4 बच्चे, मेरे आदमी पहले रिक्शा चलाता है, मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे बच्चों को कहाँ ले जाऊंगी? कहाँ जाएंगे हम लोग? जब सरकार का देना आता है वोट दो तो हम देने जाते। अब सरकार कहाँ चली गई? कौन सी सरकार है यहाँ की? कहाँ पे? कहाँ है शहजाद खान? कहाँ है मोदी? कोई को तो लाओ आगे। कहाँ है? सब मर गए कि कहाँ है? कोई तो आवे। हम घर बिगड़ आ गए, हम घर में रहते तो बच्चे हैं, बच्चों को लेके जाएंगे, हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? कितने समय से आप रहते थे यहाँ? हमारे को यहाँ पे 30 साल हो गया, तो हम कहाँ पे जाएंगे? हमारा झोपड़ा बंधा हुआ था यहाँ पे, हमने धीरे धीरे कैसे करके पेड़ काट के हमने कराया है यहाँ पे मकान। पुलिस जो प्रशासन है उसका कहना है कि अवैध रूप से आप यहाँ पे रहते थे। ठीक है, अब हम गैर से रह रहे थे, हमको नोटिस मिली थी, रातों रात आके बोल दिया मकान खाली करो। ऐसे कैसे कोई मकान खाली कर देगा? कौन मकान खाली कर? ये हम क्या गाने वाले हैं? नोटिस मिलेगा तो करेंगे ना। शहजाद खान आपसे मिलने के लिए आए? कोई नहीं आया मिलने, कोई मिलने नहीं आया, कोई भी नहीं आया। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ बांग्लादेशियों को पनाह दी। ठीक है, नहीं हमने नहीं दी कोई बांग्लादेशी का, तो ऐसा है बिहारी बंगाली गुजराती सबका ऐसा है, वो अपने मजदूरी करके अपना खाते हैं, वो कोई हमारे वहाँ नहीं खाते ना हम उनके वहाँ खाते हैं, सब अपना अपना कमाते अपना अपना खाते हैं। बराबर है, सही। कोई किसी का नहीं खाता है यहाँ पे, मजदूरी करते हैं, बच्चों को पालते हैं, भीख मांगते और खाते हैं। अच्छा क्या कहोगे? क्योंकि घर एक आसियाना होता है, घर आसियाना, हमारा आसियाना उजड़ के हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? कौन है हमारा? कोई नेता नहीं आ रहा, कोई नेता ना कोई नेता खाना पीना पूछ रहा है, ना कोई नेता घर का पूछ रहा है, ना कोई पैसा भाई बिचा रहा है, तो ऐसा नेता क्या काम का? परेशान है हम लोग। कौन सा नेता क्या काम का? हमें को कोई नेता की जरूरत नहीं है, कोई नेता हमें नहीं चाहिए। 40 बरस से रह रहे हैं यहाँ पे, सब बिहारी और गुजराती वाले हैं, बांग्लादेश के भी कोई भी यहाँ पे नहीं रह रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे वो लोग कहाँ लेके जाएंगे? सब आदमी लोग, मोदी सरकार लोग कहाँ पे गए हैं? हालत मेरे ऐसे कहाँ पे जाने का है? वोट लेने के लिए बोलते वोट तो हम लोग दे दे के जिता देते, फिर हम लोग को भगा देते हो, पूछने भी नहीं आते। कोई सहारा नहीं, कोई नहीं देगा, कोई आदमी भी नहीं है यहाँ पे, क्या करने का है? बढ़िया। कोई काम नहीं कितने आता समय नेता। से आप रहते हो आंटी?
40 साल 40 साल 40 साल हो गए। यहाँ तो बोल रहे हैं अवैध रूप से आप रह रहे थे। नहीं ये 40 साल से ग्रुप भी है, सब है, सब कुछ पूरा हुआ है, पूरा। 40 ये साल रहा, से देखो पूरा आप देख राशन सकते हो, कार्ड है। सब चीज है मेरे पास। बोल के ना अभी राशन जो क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की थी, बांग्लादेशियों को पकड़ा था, हाँ। उसमें आपके घर से भी कोई ले गए थे किसी को? नहीं। इस तरह से भारतीय नहीं हम लोग नहीं लेके गए। तो ऐसे आरोप लग रहे हैं यहाँ पे कि बांग्लादेशियों को पनाह दी जाती थी, वहाँ यहाँ पर रह रहे थे। बांग्लादेशी नहीं गलत से कमा रहे। गुजराती, यूपी और बिहार के रहने वाले भरा से यहाँ पे धंधा पानी चलता है, मजदूरी को लेके मजदूरी करके यहाँ अच्छा, पे खा आपके रहे हैं। परिवार में कितने लोग हैं और आपके परिवार वाले क्या करते हैं यहाँ? मदीना खाला यहाँ पे कारखाने में काम करते हैं। कितने लोग? पन्नी का देवर है, एक मेरा आदमी है और सास है, ससुर है। आप घर यहाँ पे भाड़े से रहते थे कि आपका खुद का घर था? यहाँ पे खुद ही है। खुद का ही बनाया था। हाँ, तो छप्पर बनाया। अब क्या करोगे, क्योंकि आपका घर ही तोड़ दिया, किस तरह से आप करोगे आगे सर्वाइव? यही तो इंसाफ मांगते के ना हम इंसाफ मांगते हैं, हमको इस काम दो, हमको घर के बदले में घर दो, घर के लिए हमको घर के बदले में घर छोटे चाहिए, छोटे बच्चे दो रोड पे भी नहीं रह रहा, हमको घर के बदले घर चाहिए। सुल्तान खाना जी पहले से जी आपका नाम बताइए। जरीना बानो, कितने समय से यहाँ रहते हो आप? हम लोग 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। और जो घटना हुई है, आपके घर तोड़े गए हैं, बोला अवैध रूप से आप रहते थे, क्या कहोगे? ठीक है, हम मानते हैं अवैध रूप से रहते हैं, मगर हमको नोटिस मिलना चाहिए, 2 महीने का 3 महीने का नोटिस मिलना चाहिए। जी बोलिए। बोलो हमको नोटिस नहीं दिया, हमको नोटिस नहीं दिया। रात को आके बोलते मकान खाली कर दो, ऐसे कैसे खाली कर दो? रात मकान खाली कैसे कर, कहाँ जाएंगे हम लोग? लेके कहाँ दौड़ेगा इनसे? छोटे छोटे बच्चे हैं, आज हमारा घर टूट गया। फैमिली में कितने लोग? हम लोग 5 लोग हैं। कितने घर थे आपके? ये एक ही घर है। क्या करते हैं आपके परिवार वाले, आपके घर वाले? हमारा छुट्टा मजदूरी करते हैं, कितना कमाते हैं, 200 रुपया कमाते हैं, हम कितना 1-1 रुपया जमा करके हमने घर बनाया, और ये सब तोड़ देंगे, हम कहाँ जाएंगे बताओ? हमको कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो हमारे हाथ में क्या हमारे इस हाथ तरह में। से आए कॉर्पोरेशन वाले, आपको क्या बोला? कॉर्पोरेशन वाले कोई नहीं आया, नहीं आया यहाँ, इनको बोलते ही नहीं आ रहा है, हटो। कोई भी नहीं आया। अबे बीजा। एक मिनट आपका नाम बताइए। शेख मोहम्मद कौसर, रफीक मोहम्मद, वली मोहम्मद शेख। कौशल भाई, आज डिमोलिशन की कामगिरी हुई, आपका घर भी तोड़ा गया है, कितने साल से आप यहाँ पे रहते हैं, किस तरह से कार्यवाही को देख रहे हैं? मेरे को 30-35 साल हो गए हैं यहाँ पे, और मैं आज बरसों से रह रहा हूँ। और ये मेरा आधार कार्ड है, ये मैं जब से बना है आधार कार्ड तब से यहीं है, और ये मेरा आधार कार्ड है, आपके डॉक्यूमेंट तो है, बाकी ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा स्कूल सटी है, ये स्कूल सटी है। अरे हाँ, ये लाइट बिल है मेरा। लाइट बिल पकड़ जैसे आधार कार्ड होगा ना। और हाँ ले बोलो। सब डॉक्यूमेंट है, ये मेरी गैस की पासबुक है, ये मेरी गैस की पासबुक है, ये मेरा राशन कार्ड है, ये मेरी पर्सनल फैमिली, मेरे 4 बच्चे और मेरा है, ये सारा। और 6 मेंबर का है अंदर नंबर। रेशन कार्ड चालू है मेरा, और हर महीने रेशन भी ला रहा हूँ। ले और ये मेरे बोर्ड के एग्जाम दिए हुए छठी है 2002 के, ये मैंने मेरी स्कूल के एग्जाम दिए थे यहीं से। एक मिनट चुप रहो। कौशल भाई, हाँ, ये मेरा एनसीसी बोर्ड नंबर है जो गुजरात गवर्नमेंट ने दिया था मेरे को। सर दूसरी चीज आपने, ये मेरा आधार इलेक्शन कार्ड है, जो मेरा इलेक्शन वोटिंग दे रहा हूँ, हर साल जब भी इलेक्शन आता है तब वोटिंग दे रहा हूँ। और ये मैं म्युनिसिपैलिटी स्कूल में ही पढ़ा हूँ, मैं कई बार पर्सनल स्कूल में पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट की पढ़ाई की है मैंने। और ये मेरा जन्म है ना वाडीलाल के हॉस्पिटल में ही हुआ है, मैं वाडीलाल की पैदाइशी हूँ साहब। सर क्या आप धंधा क्या करते थे? मैं जॉब करता हूँ, नौकरी करता हूँ, मजदूरी काम करता हूँ, मैं मेहनत करके आगे बढ़ा हूँ। अच्छा, किस तरह से देख रहे हो, क्योंकि यहाँ बोला गया अवैध रूप से आप इतने टाइम से रह रहे थे ना, प्रशासन ने बोला कि अब इसे तोड़ना पड़ा। हाँ, ये तोड़ना पड़ा, मैं मेरा घर छोड़ के नहीं गया, और मेरे घर किसी ने आवाज भी नहीं लगाई, तो मैं मेरा घर क्यों नोटिस भी नहीं दी गई है, और मैं मेरा घर छोड़ के क्यों जाऊँ? मेरे घर को किसी ने छोड़ा नहीं है।
घर तोड़ने नहीं देंगे, हम लोग यही रहते हैं, यहाँ ऐसा कहा बांग्लादेश के जो लोग हैं अवैध रूप से यहाँ रहते थे उनको निकाला गया, इसके लिए उनके घर डिमोलाइज किए। लेकिन देखो आज अपने पड़ोस में कोई रहता है, अपने को पता नहीं को बांग्लादेशी के इंडियन है, अपने तो भेगी रह रहे हैं, सब आम पब्लिक भी भेगी रह रही है। ऐसा नहीं अपने यहाँ पूरे इंडिया में भेगी रह रही है पब्लिक, तो उसमें अपने हर किसी को पूछ नहीं सकते भाई तू इंडियन है क्या, तू बांग्लादेश। हम तो यहाँ पैदा हम इतने गर्व के साथ कह सकते कि हम इंडियन है, हम इंडियन है, इतने गर्व के साथ कह सकते हैं। अच्छा, जो भी क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की थी आपको ले गए थे? नहीं ले गए हमको, हमका घर उठाए नहीं थे, हमके घर हमारे घर नहीं आए, हम घर ही थे, हमारे मोबाइल भी हमारे पास है, हमारे लोकेशन हमारे घर के ही बताएंगे। अगर चेक करेंगे तो हमारे घर के ही लोकेशन बताएंगे। मेरे बच्चे 2 दिन तक मेरे बच्चे 2 दिन तक मैं यहाँ था। मेरे बच्चे सारों को देख के वो इधर उधर ले जाते तो भाग के मेरे बच्चों को बुखार चढ़ गई है, इसलिए मेरे बच्चों को 4 में से 2 को बुखार चढ़ गई है। वो मेरे बच्चे समझ ले, लेकिन अब वो जो बच्चे मेरे बीमार पड़ गए उनकी जवाबदारी कौन लेगा? आप बताइए। अल्लाह का मकान एक भी नहीं है, हम लोग ने मेहनत कर घर काम कर 1 रुपया जोड़ के मकान बनवाया, हमारा मकान नहीं जाने चाहिए। कितने साल से रह रहे हैं? हम लोग को बरस होगा, हमारे दादा नाना सब यहीं के आएंगे, हम लोग बाहर के भी नहीं है, यहीं के। हमारे साथ अन्याय हो रही है, हम लोग हमारा मकान नहीं तोड़ने देंगे। कुछ भी हो, भला हमारी जान चली जाए पर हम मकान तोड़ने नहीं देंगे। कुछ भी हो, हम लोग कहना है कि अवैध रूप से हम लोग गरीब आदमी मजदूर आदमी, हम लोग कहाँ से लाएंगे, क्या जाएंगे, क्या करेंगे? हमारा बिहार का हो गए हमारे को यहाँ रहते आज 1 मिनट में हमारे घर तोड़ दिए। ये मेरे पोता पोती कहाँ लेके जाऊँ मैं? घर काम करके नौकरियां करके मेरे बच्चों ने मकान बनाया। आज ये लल्ला की जगह नहीं थी, हमारी जगह थी, अपने लल्ला के जगह में नहीं बसाया। जो सजा देनी है तो उसको दो, सरकार से हम न्याय मांगते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, मेरी छोकरियां हैं, ये घर काम करती है, और जब ये मकान हमने बनाया, हमारे 6 मकान तोड़ दिए। ये पोता पोती को लेके हम रोड पे पड़े, कहाँ जावे? तो हम कहाँ जाएंगे? आज 3 दिन हो गए हमारे को पानी पीते, कोई पूछने नहीं आता है। पानी की बोतल पे जी रहे हैं हम, पानी की बोतलों पे जी रहे हैं। ना शनि बाबा आया, ना कोई आया, हमारी कोई देखभाल करने नहीं आता कि हमारे को कोई दिलासा देवे, हमारे को ऐसा कहे कि सब्र करो। छोटे छोटे बच्चे मेरा बीमार पड़ गए, ये मेरी बहू बीमार पड़ गई, गिर गई जल्दी सामान निकालने में, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हाँ, क्या करोगे आप? क्या करेंगे? हमारा घर टूट गया। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम खैरुनिसा मोहम्मद कौसर शेख। कहाँ रहते हो? मैं यहीं पे रहती, झुपड़ा बांध के रहती थी। मेरे को जैसे जैसे मेरे पास आता गया पैसा, मैं वैसे वैसे बनाती गई। अब मेरे 4 बच्चे, मेरे आदमी पहले रिक्शा चलाता है, मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे बच्चों को कहाँ ले जाऊंगी? कहाँ जाएंगे हम लोग? जब सरकार का देना आता है वोट दो तो हम देने जाते। अब सरकार कहाँ चली गई? कौन सी सरकार है यहाँ की? कहाँ पे? कहाँ है शहजाद खान? कहाँ है मोदी? कोई को तो लाओ आगे। कहाँ है? सब मर गए कि कहाँ है? कोई तो आवे। हम घर बेघर आ गए, हम घर में रहते तो बच्चे आएंगे, बच्चों को लेके जाएंगे, हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? कितने समय से आप रहते थे यहाँ? हमारे को यहाँ पे 30 साल हो गया, तो हम कहाँ पे जाएंगे? हमारा झुपड़ा बंधा हुआ था यहाँ पे, हमने धीरे धीरे कैसे करके पेड़ काट कर हमने कराया है यहाँ पे मकान। पुलिस जो प्रशासन है उसका कहना है कि अवैध रूप से आप यहाँ पे रहते थे। ठीक है, अब हम गैर से रह रहे थे, हमको नोटिस मिलनी थी, रातों रात आके बोल दिया मकान खाली करो। ऐसे कैसे कोई मकान खाली कर देगा?
कौन मकान खाली कर रहा है? ये हम क्या गाने वाले हैं? नोटिस मिलेगा तो करेंगे ना। शहजाद खान आपसे मिलने के लिए आए कोई नहीं आया मिलने, कोई मिलने नहीं आया। कोई भी नहीं आया। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ बांग्लादेशियों को पनाह दी ठीक है, नहीं हमने नहीं दी कोई बांग्लादेशी का तो ऐसा है, बिहारी बंगाली गुजराती सबका ऐसा है, वो अपने मजदूरी करके अपना खाते हैं, वो कोई हमारे वहाँ नहीं खाते ना हम उनके वहाँ खाते हैं, सब अपना अपना कमाते अपना अपना खाते हैं। बराबर है सही। कोई किसी का नहीं खाता है यहाँ पे, मजदूरी करते हैं, बच्चों को पालते हैं, भीख मांगते और खाते हैं। अच्छा क्या कहोगे, क्योंकि घर एक आसियाना होता है। घर आसियाना, हमारा आसियाना उजड़ के हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? कौन है हमारा? कोई नेता नहीं आ रहा, कोई नेता ना कोई नेता खाना पीना पूछ रहा है, ना कोई नेता घर का पूछ रहा है, ना कोई पैसा भाई बिचा रहा है, तो ऐसा नेता क्या काम का? परेशान है हम लोग। कौन सा नेता क्या काम का? हमें को कोई नेता की जरूरत नहीं है, कोई नेता हमें नहीं चाहिए। સર પ્રથમ ગુજરાતી આપણે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ચંડોળા તલાવના જે એરિયામાં છે લલ્લુ કરીને એક લલ્લુ બિહારી નામથી ઓળખાય છે, એના તમે જુઓ કેવી રીતે એન્ક્રોચમેન્ટ એને કર્યા છે, એના ઘણી બધી દુકાનો બનાવી લીધી, મકાનો જુઓ, અહીંયા એના 200થી વધારે તો ઓટો રિક્ષાઓ એ રાખતા હતા, ભાડા ઉપર આપતા હતા, અને એની પાસે ઘોડા પણ અહીંયા મળ્યા છે। તો એની પ્રવૃત્તિ આવી હતી કે લોકોને એગ્રીમેન્ટ બનાવી અને એ લોકોના જે આધારના જે આપવાનું બનાવવાનું જે કાર્યવાહી છે એમાં મદદ કરતા હતા। તો એના વિરુદ્ધ આપણે એફઆઈઆર આજે ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં દાખલ કરી છે, અને અહીંયા એ જોઈને ખરેખર તાજુબ લાગે છે। આ બધું તલાવનો એરિયા છે અને સુપ્રીમ કોર્ટના ઓર્ડર છે કે તલાવમાં કે જાહેર જગ્યામાં એ રીતે એન્ક્રોચ થઈ નહીં શકે। અગાઉ પણ અહીંયા 2009માં ખાસા ડિમોલિશન જે આ રીતેનું છે, અને એટલું મોટું તો નહીં પણ પહેલાં પણ અહીંયા કોર્પોરેશને ડિમોલિશન કર્યા હતા, પણ એ લોકો ફરીથી આ બનાવી લે છે। તો અત્યારે જે કાર્યવાહી છે બહુ વ્યવસ્થિત રીતે અમદાવાદમાં અહીંયા ચંડોળા તલાવ એરિયામાં ચાલી રહી છે। અહીંયા જોઈન્ટ કમિશનર ક્રાઇમ મિસ્ટર શરદ સિંગલના સુપરવિઝન હેઠળ વ્યવસ્થિત કાર્યવાહી થઈ રહી છે। લગભગ 2000થી ઉપર પોલીસ છે અને 20 SRPની કંપનીઓ પણ રાખી છે, અને આગે અમદાવાદના તમામ જે પોલીસ છે સ્ટેન્ડ બાય ઉપર છે। કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ બનાવ ના બને એ માટે આપણે અપેક્ષા છે કે કોઈ એમાં કાયદો હાથમાં લેશે નહીં। પોલીસ સંબંધી આગામી દિવસમાં શું કાર્યવાહી સર? આજે છે ખાસ કરીને જે બાંગ્લાદેશીઓ વિરુદ્ધ જે આપણે ડ્રાઈવ ચલાવી રહ્યા છીએ, આ ચંડોળા તલાવ એરિયામાં જ નહીં બીજા પણ અમદાવાદના જુદા જુદા એરિયામાં આપણે બાંગ્લાદેશીઓને શોધી રહ્યા છીએ, અને અમુક જગ્યાએ આપણે સફળતા પણ મળી રહી છે। અત્યાર સુધી એ ખાસા નંબર આપણે મળી ગયા છે, લગભગ 190થી ઉપર બાંગ્લાદેશીઓ આઈડેન્ટિફાઈ થઈ ગયા છે। હવે એના ડિપોર્ટેશનની કાર્યવાહી પોલીસ હાથ ધરશે। લલ્લા બિહારીની અપડેટ શું છે અત્યાર સુધી? લલ્લા બિહારીના જે એફઆઈઆર થઈ ગઈ છે એના અત્યારે એના વિરુદ્ધ જે કાર્યવાહી છે એના સાથે કોણ કોણ સાગરીતો હતા, કોણે બધા કરાવતા હતા, બીજી કોની સંડોવણી છે, એ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ તરફથી ઊંડાણથી તપાસ થશે, અને જે કોઈ મળશે એમાં આરોપી તરીકે તો એને પોલીસ કાર્યવાહીના વિરુદ્ધ કાયદેસર કરશે। મકાનોના જે તોડવાનો છે અત્યારે કાર્યવાહી ચાલુમાં છે, એક્ઝેક્ટ આંકડા આપણે જોઈન્ટ કમિશનર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા એ આપી દેવામાં આવશે। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે